into groups। कि हमने देखा था कि बहुत सारी चीजें जो उनको ग्रुप्स में डिवाइड कैसे करते हैं वो हमने सीखा था। सो नाउ हियर वी हैव सम एनिमल्स हियर। दीज आर जंपी एनिमल्स। Okay, these are jumpy animals just like frog, squirrel, rabbit, horse, kangaroo. Okay, so a frog jumps 2 steps at a time. A frog jumps 2 steps at a time. Then a squirrel jumps 3 steps at a time. A rabbit jumps 5 steps. A horse jumps 15 steps. And a kangaroo jumps 30 steps. Okay, so you all will remember these steps. A frog jumps 2 steps. A frog jumps 2 steps. Then a squirrel jumps 3 steps. Then a rabbit jumps 5 steps. A horse jumps 15 steps. Okay, then okay, so you all will remember these steps. Okay, frog जो है वो 2 steps jump करता है at a time. Then a squirrel jumps 3 steps. Rabbit jumps 5 steps. Horse jumps 15 steps. And a kangaroo jumps 30 steps at a time. Okay, so let's move on to next page. On next page, there you can see some numbers and steps are there. With using these steps, we are going to solve these questions. So the first one is, in how many jumps will the frog reach 30? In how many jumps will the frog reach 30? Okay, frog can jump 2 steps at a time. Okay, so we write here 30 divided into 2. So 30 divided into 2. See, here we can see the first jump, then second, then third, fourth, fifth, sixth, seven, eight. Now up to 30, frog reach up to 30 in 15 jumps. Okay, so we will write here 15. क्योंकि frog क्या करता है, at a time वो 2 steps लेता है. Okay, so he will reach 30 in 15 jumps. Good morning, sir. Okay, then next question. In how many jumps will the squirrel reach 27? Now, in how many jumps squirrel reach 27? And we know squirrel can jump 3 steps at a time. So 27 divided into 3. For this you need to know about the tables. Okay, जिनको 3 का टेबल आता है वो आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं. Just like 3 9s are 27. Okay.
Now let's see next questions. Which number will the kangaroo reach in 2 jumps? Which number will the kangaroo reach in 2 jumps? Sir, 60 jump. 60 jumps. 60. Okay, because we have seen that kangaroo can jump 30 steps at a time. Okay, so 30. So we can do here 30 multiply 2. So we get the answer 60. Okay, so kangaroo will reach 60 in 2 jumps. Okay, now next one. Who all will meet at the number 15? ओके, ये जो नंबर 15, Squirrel, rabbit, horse. कौन कौन यहाँ पर नंबर 15 पर आ सकता है? सो फॉर दिस सबसे पहले हमें देखना है कि कौन कौन आ सकता है. ओके, सो ऐसे हमें देखना है कि जैसे यहाँ पर फ्रॉग जंप्स 2 स्टेप्स, तो 2 के टेबल में 15 आ सकता है. 2 एट जा सीधा 16 होता है. दैट मीन जो फ्रॉग जो है वो 15 पर नहीं आएगा. देन स्क्विरल 3 5 जा 15. दैट मीन्स स्क्विरल will be at 15. ओके, स्क्विरल जो है वो 15 पर आ सकता है. 3 5 जा 15. देन रैबिट 5 3 जा 15. सो रैबिट विल ऑल्सो देयर. एंड हॉर्स, इसका पहला ही जंप 15 स्टेप पर होता है, तो ये भी यहाँ पर हो सकता है. सो स्क्विरल, रैबिट, एंड हॉर्स. ओके, सो यू राइट हियर squirrel, rabbit, and horse. These three animals will meet at the number 15. Squirrel, rabbit, and horse. Okay. Next one. Will the rabbit ever be at the number 18? No, Will the rabbit no. ever be at the number 18? No. Why no? कौन बताएगा क्यों नहीं आ सकता वो 18 पर? Why? क्योंकि सर वो 2 जम्प्स मारता है. रैबिट जो है वो कितने जम्प्स लेता है? लेट्स सी हियर. 2. रैबिट जो है वो 5 स्टेप्स लेता है. 5 स्टेप्स. ओके, रैबिट की जो स्टेप्स है वो 5 स्टेप्स है एट अ टाइम. अगर वो यहाँ से स्टार्ट करता है, ठीक है, तो सबसे पहले आएगा यहाँ पर 5 पर. देन नेक्स्ट वो पहुंचेगा 10 पर. एंड डायरेक्टली वो कहाँ पर जाएगा? 15 पर. 15. देन आफ्टर 15 वो सीधा जाएगा 20. दैट्स वाई रैबिट never be at the number 18. So here you will write no. Okay, now the next. How many jumps of the rabbit equal one jump of the horse? How many jumps of the rabbit equal one jump of the horse? Okay, rabbit की कितनी जंप होने के बाद हॉर्स की एक जंप होगी?
Three. some are saying 3. हॉर्स की जंप्स कितनी है? हॉर्स कैन टेक स्टेप्स 15, ओके, एट अ टाइम। जंप में वो 15, ओके। और रैबिट की कितनी है? 5। सो 5 वन जा 5, 5 टू जा 10 एंड 5 3 जा 15। मतलब वो जब वो 3 टाइम्स जंप करेगा तब जाकर वो हॉर्स के पास पहुंच सकेगा। Okay, then next, how many jumps of the horse equals 2 jumps of the kangaroo? 2 jumps of the kangaroo. So for that, we should know about the 2 jumps of the kangaroo. Kangaroo की जो 2 jumps है वो कितनी होगी? First of all, you tell me kangaroo's 2 jumps. Kangaroo की जो 1 jump है वो है 30. Okay, so 2 jumps will be 60. 60. So kangaroo की जो 2 jumps है वो है 60, ठीक है। एंड हॉर्स, हॉर्स की जो जंप है, ठीक है, 1 जंप में वो कितने स्टेप्स है? सर पेपर में कौन कौन से लेसन आएंगे? पेपर में अभी सभी लेसन आएंगे सेकेंड टर्म के। सेकेंड टर्म का जो सिलेबस है हमारा वो पूरा आएगा उसमें। सर इंग्लिश की ओरल एग्जाम होने वाली है। सब बताया जाएगा बेटा आपको, अभी ना आप सिर्फ इस पर फोकस करो, बाकी सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। ओके, नाउ टेल मी, हॉर्स जो है वो कितने स्टेप्स जंप करता है एट अ टाइम? 15 steps. 15 स्टेप्स, ओके। सो उसको 60 तक आने के लिए कितने बार जंप करना पड़ेगा उसको? हॉर्स को अगर 60 तक आना है, हॉर्स को अगर 60 तक आना है तो उसको कितनी बार जंप? 4 times. देखो, पहली जंप उसकी होती है 15 पर, सेकेंड जंप उसकी होती है 30 पर, थर्ड जंप उसकी होगी 45 पर, और फोर्थ जंप होगी उसकी 60 पर। सो द करेक्ट आंसर इज 4, ठीक है। यहाँ पर हमें देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी जंप्स ऑफ द हॉर्स इक्वल्स 2 जंप्स ऑफ द कैंगारू। मतलब कंगारू की जो 2 जंप्स हैं उसके इक्वल हॉर्स की कितने जंप्स होंगे, ठीक है। कंगारू 2 जंप्स में वो 60 क्रॉस करता है, 60 स्टेप्स तक वो आता है, तो उसी के बराबर 60 तक आने के लिए हॉर्स को 4 जंप्स की जरूरत होती है कि, ओके। सो 4 मल्टीप्लाई 15 विल बी आंसर 60। तो 4 बार वो हॉर्स जंप करेगा तब जाकर उसको कंगारू 2 जंप्स के बराबर वो आएगा। राजवीर, दूरवीर, बेटा आप ये क्या करते हो बार बार बीच में, मेरी स्क्रीन गायब हो जाती है। Okay, so next one, which is the smallest number where the frog and the squirrel will meet? Which is the smallest number where the frog and the squirrel meet? अभी हमें नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है कि जहाँ पर स्क्विरल और फ्रॉग दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। So for that, फ्रॉग जंप्स 2 स्टेप्स, ये हमें पता होना चाहिए, और जो स्क्विरल है वो 3 स्टेप्स जंप करता है। तो दोनों जब स्टार्ट करेंगे, ठीक है,
टेबल पे आएंगे ना तब वो दोनों एक साथ रहेंगे। देखो जो फ्रॉग है वो स्टार्ट करेगा तो वो 2 पे जाएगा, ठीक है। देन जो स्क्विरल है वो अगर स्टार्ट करता है तो वो जाएगा 3 पर। देन फ्रॉग जाएगा 4 पर, स्क्विरल जाएगा 6 पर, ठीक है। तो फिर ये फ्रॉग जो है वो आएगा 6 पर। दैट मीन्स ऑन द नंबर 6 नंबर पर वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। ओके, सो द आंसर विल बी 6। दे आस्क द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, जहां पर वो सबसे पहले मिलेंगे वो स्मॉलेस्ट नंबर उन्होंने पूछा है। ओके, सो आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड। अभी ये जो है हाउ क्विक आर यू, डिवाइड इनटू ग्रुप्स ऑफ 2 यूजिंग 2 टाइम्स टेबल। फटाफट सभी लोगों को आंसर्स बताने हैं। अभी यहाँ पर मैं बताऊं? आपको देखना है, देखो जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये दोनों हमें टेबल्स के बेस पर करने होते हैं। अगर आपको टेबल्स आते हैं तो आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आराम से कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो 8 डिवाइडेड इंटू 2, ठीक है। 18 डिवाइडेड इंटू 2। अभी इसमें क्या होता है, आपको क्या करना है, ये जो 2 है इसका टेबल बोलना है कहाँ तक, जब तक 18 आ नहीं जाता, ठीक है। सो अगर 2 का टेबल हम बोलते हैं, सो 2 9 जा 18। तो यहाँ पर लिखा है 2 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल 18। ओके, किसी ने तो कमेंट किया कि डिवीजन हमने पढ़ा नहीं है, तो बेटा आपने लास्ट क्लास में हम डिवीजन ही पढ़ रहे थे, ठीक है। और अभी भी हम डिवीजन ही पढ़ रहे हैं। जस्ट लाइक दैट 18 divided into 9. Okay, so what we can do here, we can write 9 multiply 2, 9 multiply 2, 9 to the 18, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया? सर ओके, सो नेक्स्ट वन। अभी इसका आंसर सभी को बताना है। 16 डिवाइडेड इंटू 2, 16 divided into 2, yes, here we write 8 because 2 8 are 16, and here we will write 2 multiply 8 16। देखो ये जो दो नंबर्स होते हैं इनको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं इसके लिए हम इस तरीके से उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। हमारा डिवीजन का आंसर करेक्ट है कि नहीं हम मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। चलो देखो नेक्स्ट वन, 20 डिवाइडेड इंटू 2, 10 10 10। ओके, सो this answer is correct or not? For this we will multiply 2 by 10 to the 20। That means our answer is correct। ओके, आंसर हमारा करेक्ट है कि नहीं वो चेक करने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, नाउ हियर वी हैव ओनली टू नंबर्स,
ओके, 2 इज हेयर एंड 7 इज हेयर, लेकिन यहाँ पर क्या है वो गायब है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 14. 14, here will be 14 because we know 2 multiply 7, now 14 यहाँ पर आया, मतलब यहाँ पर भी क्या होगा? 14. Okay, now what about this? Now we have 2 and 10. 20. So first do 2 multiply 10, 2 tens are 20, that means here will be number 20. Okay, now we have this number 8. Okay, and the answer is 4. Now what you will do? तो इसके लिए 8 क्या करना है? को मल्टीप्लाई करेंगे। अभी कुछ लोगों को ऐसा बोलना हो कि 8 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो वो हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर नंबर नहीं दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, इस नंबर को हम यहाँ पर रख सकते हैं। ओके, सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन में देखा था 2/4 करो या फिर 4/2 करो, दोनों का आंसर क्या होता है? सेम ही होता है। ओके, 2/4 करो या फिर 4/2 करो, दोनों का आंसर क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, नाउ दिस वन, नाउ 2 इज here and 5 is here. सर आंसर इज Answer is 10. Okay, so like this we will complete this one. Divide into groups of 5 using 5 times table, divide into groups of 10 using 10 times table. तो ये 5 का टेबल और 10 का टेबल का यूज करके आपको ये दोनों कंप्लीट करना है। ठीक है, ये दोनों आपको कंप्लीट करना है, दिस वन ऑल्सो, दिस वन ऑल्सो। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट कर लेना है। हम आगे देखते हैं अभी। नाउ ट्राई दिस, नाउ हियर वी हैव 4 and here we have 2, so what will be the number here? क्या आएगा यहाँ पर? 2. यहाँ पर आएगा 2, क्यों? 2 2 जा 4। देखो, अगर आपको जैसे यहाँ पर ऐसा दिया 4, ठीक है, डिवाइड, देन यहाँ पर ब्लैंक है, ठीक है, और इज इक्वल टू अगर आपको दिया है 2 दिया है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ये 2 जो है आप सीधा यहाँ पर भी रख सकते हो उसको, तो जो भी आंसर आएगा वो आप लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हम दोनों नंबर्स जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 आप इससे भी करो तो उसका आंसर 4 ही आने वाला है। ठीक है, जैसे अगर 4 मल्टीप्लाई 2 8 ही आता है, 2 मल्टीप्लाई 4 भी 8 ही आता है, तो हम उनको मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स आगे पीछे होने के बाद भी आंसर चेंज नहीं होते। ओके, देन नेक्स्ट वन, 14 डिवाइडेड इंटू 7।
14 डिवाइडेड इंटू 7। ओके, 7 का टेबल जिसको आता है वो तुरंत आंसर बताएगा। सर 2 2 7 बन जाए 7 टू ज़ा 16 14। Okay, सर so here you can write 7 multiply 2 14. Okay, so like this one also you will complete. ये भी आपको complete करना, ठीक है। And the last one, divide the clock सर मेरा हो divide the clock face into 3 parts so that the sum of the numbers in each part is the same. इस क्लॉक फेस को हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिससे कि हर पार्ट के जितने भी नंबर्स होंगे उनका जो सम होगा, मतलब उनकी जो एडिशन होगा, उन सबको मिलाकर जो नंबर होगा वो सेम। जैसे 11 प्लस 12 11 प्लस 12 कितने हुए? 23 5 11 93 प्लस 12 23 23 23 प्लस 1 24 and 24 plus 2 26. 26 ओके, नाउ अभी हम ये जो क्लॉक फेस है इसको ऐसे 2 पार्ट्स में और करना है कि जिसका आंसर हमारे 26 आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड कहाँ से करेंगे? लेट्स डिवाइड इट फ्रॉम हियर। ओके, अभी हम इनकी एडिशन कर लेते हैं कि 26 आ रहा है। 10 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 4। चलो ऐड करो इन सबको। It is 26 26 आ रहा है आंसर। 6 10 plus 9 19, 19 plus 3 22, and 22 plus 4 26. That means we have divided this clock face into 3 parts. Okay, now अभी मुझे आप लोग ठीक से बता दो किसको डिवीजन समझ में नहीं आया। जिनको समझ में नहीं आया, आया किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो इस डिवीजन में तो वो तुरंत पूछ सकता है अभी। सर क्लॉक को डिवाइड कैसे सर क्लॉक को डिवाइड कैसे करते हैं? क्लॉक को डिवाइड हमने इसके सिर्फ 3 पार्ट्स बनाए, ठीक है। ये जो टोटल है ना 1 से लेकर 12 तक हमने 3 पार्ट्स बनाए हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है देखो, डिवाइड द क्लॉक फेस इनटू 3 पार्ट्स सो दैट द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच पार्ट इज द सेम। सम मतलब टोटल, ठीक है। जो पार्ट्स इन्होंने यहाँ पर बनाए 11 12 1 2 ये ऑलरेडी बना हुआ था। हमने इसको प्लस करके देखा कि इसका आंसर क्या आता है। तो फिर हमने देखा कि हाँ इसका पूरा जो सम है टोटल है वो 26 आता है। तो हमें ऐसे ही 2 पार्ट्स करने थे। अगर हम यहाँ से अगर एक पार्ट करते हैं, समझ लो यहाँ से अगर हम ऐसा पार्ट करते इसका 20 आया 10 प्लस 3 13 ही हो जाता, लेकिन हमें क्या चाहिए था 26। तो ये पार्ट हमारा रॉन्ग हो जाता, ठीक है। फिर हमने ट्राई किया कि हम ऐसे पार्ट करेंगे, तब जाके हमें पता चला कि हाँ 10 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 4 इसका भी आया है 26। और लास्ट वन, ये लास्ट वन भी चेक कर लेते हैं। 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 6 21 एंड 21 प्लस 5 26। मतलब जो क्लॉक के तीनों पार्ट हैं उनका टोटल कितना आया है 26।
ओके नाउ एनी अदर क्वेश्चन? किसी की और कोई प्रॉब्लम? देखो डिविजन सर नो सर फिर से पढ़ा